Good morning students and welcome you to the online class of SGOI. So we were doing exercise 21A and we have discussed up to question number 6 of congruency. So question number 7 आप अपने आप से try करेंगे. Now I will be telling you question number 8. In question number 8 a figure has been drawn which is something like this. This is O, this is M, this is L, this is A, this is B, and this one is P. This is equal to this. And now you have to solve this question. Okay? So as you can clearly see in the question they are saying that कि जो PM लाइन है वो परपेंडिकुलर है OB पर और जो PL लाइन है वो परपेंडिकुलर है OA पर और OL है वो OM के इक्वल है. That is the scenario which has been given. Now they are saying that you have to prove that triangle OLP, this triangle and triangle OMP, that is this triangle, both the triangles are congruent. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, you have to write to prove triangle OLP is congruent to triangle OMP. So first of all OLP लिखेंगे. OL is equal to OM, that has been already given. और लिखेंगे OL is equal to OM. ठीक है, this is given. इसके ऊपर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं आप इन ट्रायंगल OLP, यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OMP. OL is equal to OM is given in the question. Later on you can see एंगल P और यहाँ पे एंगल M दोनों क्या है 90 डिग्री है तो इक्वल है. दैट इज आल्सो गिवन. तो आप लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल M. दैट इज आल्सो बीन गिवन. नाउ OP और OP दोनों में कॉमन लाइन है तो आप बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू OP. दोनों में क्या है कॉमन लाइन है. यहाँ पे 90 डिग्री, this one is 90. तो एंगल L is equal to एंगल M. ठीक है, अब ठीक है. Now you can see 90 के सामने वाली साइड है ये और 90 के सामने वाली साइड है ये और वही कॉमन है दोनों में. इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 और एक अदर साइड भी आपस में इक्वल है. तो हम लोग यूज कर सकते हैं RHS प्रॉपर्टी. ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट triangle OLP will be congruent to triangle OMP by RHS axiom of congruency. मैंने पहले प्रॉपर्टी बताते हुए बताया था आपको कि कभी भी अगर दो ट्रायंगल्स में एक साइड इक्वल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और साथ ही साथ दो एंगल्स 90 हो, then we can say that triangle OLP is congruent to triangle OMP. So this is the first part, है ना. Now second part क्या प्रूव करना है आपको. In second part they are saying prove that PL is equal to PM. तो आप पहले लिखेंगे PL और PM दोनों corresponding sides हैं. बिल्कुल सही बात है. PL will be equal to PM by CP. Now third part में आपको प्रूव करना है एंगल LOP is equal to एंगल MOP. इसका मतलब बात इसी और इस एंगल O की बात हो रही है और एंगल O दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है. इसमें बोल सकते हैं ये भी प्रूव हो जाएगा बाय CP. Okay, so this is a complete solution of your question number 8.
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम अपने आप से ट्राई करेंगे। नाउ आई विल बी टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 11। सब में आपको एक नॉर्मल चीजें करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देयर इज फिगर ड्रॉन व्हिच इज दिस। दे आर सेइंग देयर ट्रायंगल ABC and then a line has been drawn from A over BC which meet BC at D. Now they are saying this BD is equal to this DC and this is equal to this AB is equal to AC. ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी आप आप ट्राई करेंगे। ठीक है, you can clearly see this side is equal to this side and this side is equal to this side. Now AC लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं AB is equal to AC and given है वो BD is equal to DC that is also given, और AB जो है वो कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD will be congruent to triangle ACD by triple S axiom of congruency, है ना। SSS axiom of congruency से ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बाय CPCTC से कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट CPCTC होगा और फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, now let's move to question number 12। ये भी आपने आपसे करेंगे। now I'll be taking the last question, that is question number 13। in question number 13 the diagram has been drawn which is first of all ABC is a triangle, first of all ABC is a triangle, and then they are saying that AB is equal to AC। AB जो लाइन है वो AC के इक्वल है, मतलब AB लाइन है वो AC के इक्वल है। ठीक है, सेकेंडली BM is perpendicular to AC, BM is perpendicular to AC। ठीक है, BM जो लाइन है यहाँ पे M पॉइंट है, BM is perpendicular on AC। Similarly they are saying कि CN is perpendicular to AB, CN is perpendicular to AB। Now they are saying that you have to prove that triangle BMC, triangle BMC, यह triangle जो है this one the triangle, ठीक है, triangle BMC is congruent to triangle CNB, यह triangle है, मतलब ये triangle जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको आपको क्या करना है, congruent प्रूव करना है। this and this triangle, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको congruent प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे टू प्रूव triangle BMC is congruent to triangle CNB, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल BMC एंड इन ट्रायंगल CNB। Soma ma'am, please come on this section right now. You can clearly see, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल BMC की, that is BMC, BC लाइन आ रही है। सिमिलरली बात करूँ अगर CNB की तो भी आपके पास BC लाइन आ रही है, तो आप बोल सकते हैं BC is equal to BC, दोनों में BC लाइन आ रही है और वो क्या है, दोनों में कॉमन है, अगर कॉमन होगी तो अपने आप ही आपस में इक्वल होगी। सेकेंडली ये जो एंगल है आपका एंगल N और जो ये एंगल है आपका एंगल M, इसको आप चाहे लिख सकते हो एंगल BNC will be equal to एंगल CMB।
तो आप याद रखेंगे एंगल CMB will be equal to एंगल CNB, क्योंकि दोनों कितने हैं 90 डिग्री, वो था 90 डिग्री, इसलिए इक्वल हो। थर्डली आपको क्वेश्चन में पहले दे रखा था कि AB लाइन जो है वो AC लाइन के इक्वल है, अगर AB AC की इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। दैट मींस वी कैन से दैट ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल जो कि किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, BNC में लाई कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल जो कि आपका BNC में लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं एंगल दिस विल बी, पहले बात कर रहे हैं BNC ट्रायंगल की, दैट विल BCM जो ट्रायंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू CBN, CBN, CBN मतलब ये वाला एंगल और BCM मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है। बोथ एंगल्स विल बी इक्वल, व्हाई? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड के सामने वाले एंगल हैं, इसलिए आपस में क्या होंगे, इक्वल। So we have got the one side equal and two angles equal. So we can clearly say that triangle, therefore triangle BNC will be congruent to triangle CNB by AAS axiom of congruency. AAS क्यों कह रहा हूं मैं, उसी ऑर्डर में आ रहा है, एंगल साइड, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं एंगल साइड से ही क्या होंगे, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय AAS axiom of congruency. नाउ सेकंड पार्ट जो है आपका, दैट इज दे आर सेइंग कि BM is equal to CN, तो BM is equal to CN ऑलरेडी होगा, BM और CN कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब BM will be equal to CN by CPCT, ठीक है। So that is, this is the completion of the chapter number 21. In our next class, I will be starting with chapter number 22, that is construction. Thank you.